اور جب مسیح کی ہے پھر میری اور آپ کی بھی ہے۔ یہ میسج اس کرسمس کے موقع پر میں اپنے لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ کوئی معمولی لوگ نہیں، مسیح کے ہم میں راز ہے اتنی بڑی برکت ملی۔ اور غلطیوں کا چوتھا باب پڑھیے، لکھا ہے جب وقت پورا ہو گیا تو پھر خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، پھر پہلے اوروں کو بھیجا، بادشاہوں کو بھیجا، جب وقت پورا ہو گیا تو اپنے بیٹے کو بھیجا، اور آگے لکھا تھا کہ شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑا لے، اور آگے لکھا ہوا ہے چونکہ تو بیٹا ہے اس لیے مسیح کے وسیلے سے وارث بھی ہوا۔ ایک بلیور ایماندار کہاں پر بات جاتی ہے؟ لوگ ادھر ہی چھوٹی چھوٹی زمینوں کے ٹکڑوں کے لیے لڑتے جھگڑتے ہیں، اور برکات کیا ہے؟ اس کائنات کی میراث کا وعدہ لکھا زمین کے انتہائی حصے قریب اینڈ آف دا جو ہے وہ زمین سے سب انتہائی اینڈ والے حصے بھی، یعنی ساری زمین تیری ہے۔ اتنی بڑی برکات کا وعدہ خدا نے، اس لیے جب مقدسہ مریم کو خوشخبری سنائی گئی تو لکھا فرشتے نے جب اس کو کہا سلام تجھ پر خدا کا فضل ہوا ہے، اور لکھا تو حاملہ ہوگی بیٹا ہوگا، کہتی کیوں کر ہوگا؟ اور لکھا خدا نے کہا کہ وہ داؤد کے تخت پر اب سے آگے بڑھیے اب تک بادشاہی کرے گا، اور پھر لکھا اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا، یعنی اس کی کingdom بادشاہی جو ہے اب تک رہے گی، ہمیشہ تک کے لیے اس کے ساتھ بادشاہی کا وعدہ پرومس ہے، وہ وارث ہے اس زمین کا۔ یروشلم پر بہت جھگڑے ہوئے ہیں، بہت زیادہ۔ یہ پچھلے سال جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ یروشلم جو ہے داؤد بادشاہ کا شہر، اور یہ انہی کی یہودیوں کی جو ہے وہ پراپرٹی ہے، ملکیت۔ اور جب برطانیہ نے جب جنگ ہوئی دوسری وارفیئر، اور وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے جب اس کے جرنیل نے فتح کیا یروشلم کو تو لکھا پھر وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہا گھوڑے پر، اور جب یروشلم کے قریب پہنچا تو کہتا ہے وہ گھوڑے سے اتر گیا نیچے، اور کہتا ہے میں گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں جاؤں گا، کہتا ہے کہ یہ داؤد بادشاہ کا شہر ہے، میں گھوڑے سے اتر کر اس کے اندر جاؤں گا۔ اور یہ پراپرٹی میں نے کہا تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کے اگینسٹ بہت سی حکومتوں نے لائنس کیا کہ اس پر قبضہ کر لیا، لیکن ہو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ وہ کرائسٹ کingdom ہے۔ داؤد بادشاہ کیا اس کا بیٹا یسوع مسیح، داؤد کی سلطنت تو ختم ہو گئی، لیکن مسیح کی سلطنت اب تک قائم رہتی، ہمیشہ تک۔ لکھا اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا، کیونکہ وہ اس کا وارث ہے، اس کی یہ میراث ہے، اس کی یہ پراپرٹی ہے، لیکن سب چیزیں اسی کے وسیلے سے بنی ہیں، خلق ہوئی ہیں۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے آپ مسیح میں کیا برکات رکھتے ہیں، وہ آپ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، بے قدر لوگ نہیں ہیں۔ مسیح میں آپ اپنا رتبہ دیکھیے، لکھا ہے مسیح کے وسیلے سے وارث، یعنی مسیح میں خدا کے اندر بیٹے بیٹیاں ہیں تو وارث بھی ہیں۔ لکھا ہے اگر خدا کا تو بیٹا ہے تو پھر وارث ہے، مسیح کے وسیلے سے ہم میراث ہیں۔ تو خدا نے اپنے بیٹے کو جب بھیجا وہ ایک وارث پیدا ہوا، اس لیے جب تین مجوسی آئے پہنچے وہاں پر، تین آئے گئی تھے مجوسی، اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ جو پیدا ہوا یہودیوں کا وہ کہاں ہے؟ بڑی ہلچل مچ گئی، ہیرودیس بھی کہا گیا، یروشلم کے سب عمرا ڈر گئے، گھبرا گئے کہ یہ بادشاہ مسیح مسیح آ گیا ہے، بہت زیادہ ہو گئے، ڈر گئے۔ انہوں نے کائن و فقیہ فریسیوں کو بلایا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے؟ انہوں نے صحائف میں سے کہا کہ میکا کی کتاب میں لکھا ہے کہ بیت لہم تو یہودا کے علاقوں میں شامل ہونے کے لیے لکھا ہے، ہر سب سے چھوٹا نہیں، یاد سنیے، لکھا ہے کہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا۔ یہ میکا نے نبوت کی کہ تجھ میں سے یہودا کے قبیلے میں سے ایک سردار نکلے گا، اور سردار کے لیے بعض ترجموں میں رولر استعمال ہوا ہے،
लेकिन बात तर्जुमों में मास्टर भी इस्तेमाल हुआ है। मास्टर यानी मालिक। इसका मतलब क्या हुआ कि तुझ में से एक मालिक निकलेगा, तुझ में से एक वारिस पैदा होगा, जो इस प्रॉपर्टी का मालिक होगा, वारिस होगा, वो तुझ में से निकलेगा। ये फकीरों फरीसियों ने बताया उनको। ऐसे नहीं गुजार गए, ऐसे नहीं कहा और इस घबरा गया। कहते मसीह की पैदाइश, मसीह पैदा हुआ, बादशाह पैदा उठ गया, खौफ ज़दा हो गया, मसीह पैदा हुआ। इसलिए वो उसने बुला के कहा होनी चाहिए। उन्होंने कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी ने कहा कि तुझ में से एक सरदार निकलेगा, मास्टर निकलेगा, मालिक निकलेगा। इसलिए अजीज भाइयों, जब वो आसमान जमीन का मालिक है तो हमारा मालिक नहीं? हाँ, क्या हमारे दिलों का मालिक नहीं? इसलिए वहां पर लिखा कि मेरे बंदे वारिस होंगे, जो मेरे बंदे हैं, मेरे नाम लेवा है, दूसरे तीसरे नहीं है। ये कोई ना समझे कि मैं भी लो। लिखा मेरे बंदे बिलीवर्स, ईमानदार, खुदा के साथ जो चलते हैं, वो उनके वारिस होंगे, उस प्रॉपर्टी के, उस मिरास के। इसलिए याद रखें, यहाँ पर घर अगरचे किराए पर है, मसीह की बादशाहत में आप रूलर की हैसियत से, आप हाकिम की हैसियत से, आप जो है वो मिरास रखते हैं। और ऐसे नहीं कहता है, कहता है अगरचे हम नादारों की मालिक हैं। हाँ, किनकी मालिक है? नादारों की मालिक। किनकी मालिक? कहता है तो भी बहुत कुछ रखते हैं, और कुछ है, बहुत प्रॉपर्टी है, आसमानों पर भी है, जमीन पर भी है, जमीन के इंतहाई हिस्से हैं। वैसे उनके माइंड में ऐसे वो नहीं कहते थे। तो लिखा मेरे बंदे उसके वारिस होंगे। मैं इस क्रिसमस के मौके पर आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बंदे हैं, आप बंदियां हैं। मुकद्दसा मरियम को जब कहा गया तो कहती है, देख मैं खुदा की बंदी हूँ। अब उसको समझती कि बंदे वाले सुने, वो भी कहती मैं खुदा की बंदी, यूनानी लफ्ज़ डू लॉस, बंदी, बंदा हूँ खुदा का। और कहता है मैं खुदा का बंदा हूँ, मैं उसकी इबादत करने के लिए खलक हुआ हूँ, मैं उसको जानता हूँ। इस्राएली नहीं थे जानते, वो समझते नहीं मालिक को, उनको पता नहीं था कि हमारा मालिक कौन है। इसलिए खुदा ने पहले बात में कहा, बैल अपने मालिक को जानता है। अभी वो जानता था बैल, जिधर मर्जी जाए शाम को मालिक के पास ही आने। और गधा अपने साहिब की चमड़ी को, गधा भी जानता है, बैल भी जानता है, जिधर मर्जी फिरे शाम को उसे कहाँ आना है? घर। उसे पता ये मेरे मालिक का घर है। खुदा कहता है मेरे लोग कुछ नहीं जानते, उनको समझ नहीं है। लिखा मेरे बंदे इस मिरास के वारिस होंगे, ये उनका हक है, ये उनकी प्रॉपर्टी है, ये उनकी जायदाद है। मेरे बंदे इसके वारिस होंगे। लेकिन आगे सुनिए, लेकिन लिखा है तुम जो इबादत नहीं करते हो, लिखा है तुम जो मुश्तरी के लिए, जोहरा के लिए ये चांद सितारों की इबादत करते हो, असरात की, बलाल की, और वहां पर लिखा है उनके लिए हदिया नजराने गुजारते हो। और उसी जगह पे लिखा है शराब ममजूज का जाम भरते हो, उनके लिए, मुश्तरी के लिए, आसमान की मलका के लिए, बाल के लिए, असरात के लिए शराब के जाम भरते हो। गुजरानते थे जाम भर भर कर गुजरानते थे। इसलिए याद रखे क्रिसमस के मौके पर जो शराबों में वक्त ज़ाया करते हैं, उन पे पैसा गुजारते हैं, याद रखें वो शैतान के लिए हदिये गुजराते हैं, शैतान को चढ़ावे चढ़ाते हैं। खुदा ने कहा तुम जो मुश्तरी और जोहरा के लिए हदिये गुजरानते हो, जाम भर भर कर नजर करते हो, लिखा मैं तुमको गिन गिन कर तलवार के हवाले करूंगा। तुम वारिस को, मालिक को नहीं जानते, और इबादत किनकी करते हो? बुतों। आज भी बहुत से बुत परस्ती के अंदर चले जाते हैं। हाँ, को पता नहीं मसीह में है क्या, बुत परस्ती करते हैं, जादू धागे तवीज़ों पे ईमान रखते और पीरों फकीरों के पास जाते हैं। हाँ, कुछ उनको पता नहीं। खुदा कहता है मैं गिन गिन कर तलवार के हवाले करूंगा। लेकिन आगे से क्या लिखा है?
मेरे बंदे वारिस हो गए, हाँ मेरे बंदे इस मिरास को ले लेंगे, पा लेंगे। इसलिए अजीज बहनों भाइयों, वो वारिस पैदा हुआ है, उसकी इज्जत, उसकी इबादत, उसकी प्रेस्टिज है, बेकदरी नहीं है। अगर कोई इस बात को नहीं समझता, इस हकीकत को नहीं जानता, तो ये क्रिसमस उसके लिए मैसेज है। वो समझे कि वो वारिस पैदा हुआ है, वो मिरास का मालिक आया है, वो हाकिम आया है, वो हुकूमत करने वाला है, और उसकी बादशाही अपातक करना होगी। मसीह ने एक तमसील सुनाई, सुनिए। लिखा किसी आदमी ने एक ताकिस्तान लगाया और वो पाकिस्तान लेकर ठेके पर प्रदेश चला गया, और वहां से जब फल का मौसम आया तो उसने कहा अपने नौकरों को भेजा के जाकर फल लेके आओ। और लिखा है कि पाकिस्तान के मालिकों ने क्या किया, जिनको ठेके पर देके गया था उन्होंने उनको मारा, पीटा, कत्ल किया। लिखा फिर उसने और नौकरों को भेजा, उन्होंने उनको भी पकड़ा, पीटा और मारा और कत्ल किया। फिर उसने और को भेजा, और जब सारे नौकर खत्म हो गए तो फिर लिखा है तो उसने अपने बेटे को भी भेजा आखिर। और जब उन्होंने देखा नौकरों ने दूर से, तो कहते यही वारिस है, ये मालिक आ गया है, वारिस आ गया है, इसको पकड़े, कत्ल करें। आगे लिखा ताकि मिरास हमारी हो जाए। कब्जा किया हुआ मिरास पर उन्होंने कब्जा ग्रुप बने हुए, आज भी कोई कब्जा जो है वो करने पसंद करते हैं, खुदा ये नहीं चाहता। लिखा जो हदूद तेरे बाप दादा ने कदीम से ठहराई है उनका लिहाज कर। उन्होंने कहा ये मालिक आ गया, वारिस आ गया, इसको पकड़े, कत्ल करें। आगे लिखा ताकि मिरास हमारी हो जाए। तुमसी ने क्या कहा, मालिक फिर क्या करेगा, लिखा यकीनन आएगा और इन सबको पकड़ेगा और इनको हवालात के अंदर जो है वो जहन्नम की आग के लिए वहां पर डाल देगा। उन्होंने वारिस की कदर नहीं की। इससे अजीज बहनों भाइयों, वो वारिस पैदा हुआ है, उसकी बादशाही अब तक, और ईसा की किताब में लिखा है मैं उसके लिए बाली करूंगा, रात दिन उसको सेजता रहूंगा, और फिर इब्लीस उनको वहां पर परेशान ना कर सके। इसलिए ये क्रिसमस आपके लिए ये मैसेज देता है कि आप मसीह वारिस पैदा हुआ है, और मैं और आप हम मिरास है उसकी। बाइबल कहती है हम मिरास है, हमारी मिरास है। और पतरस के खत में लिखा उसने हमारे लिए गैर फानी लावाल अब्दी मिरास रखी हुई। इसलिए अजीज बहनों भाइयों, वो जब आया दुनिया के अंदर तो वो वारिस बन गया है। प्रॉमिस था कि मैं यूदा के कबीले याकूब के खानदान के लिए एक वारिस बर्पा करूंगा, और लिखा है मेरे बरगुज़ीदे मेरे लोग उस वारिस उस मिरास के हिस्सेदार होंगे। इसलिए आपके लिए मैसेज है कि मसीह पैदा हो चुका है, आसमान उसकी बादशाही का आगाज हो चुका है। और मैंने लास्ट जो सरमन दिया था कि मसीह का पैदा होना, याद रखिए आसमान की बादशाही का आगाज हो चुका है। मसीह का दुनिया में आना खुदा का फसल, खुदा का प्लान, खुदा का मंसूबा है, और ये आसमान की किंगडम का आगाज हो चुका है। इसलिए अजीज बहनों भाइयों, अगर कोई तैयार है बादशाही के लिए और उस मिरास को लेने के लिए, तो यकीनन हो ही जाएगा। अदरवाइज बाइबल कहती है कि मैं उनको गिन गिन के तलवार के हवाले करूंगा। खाएंगे सूदा ना होंगे, पिएंगे प्यासे होंगे। वजह क्या है, वो मालिक को नहीं जानते। अगर मैं और आप मालिक को जानते हैं, कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, आइए अपने खानदानों से उसकी वर्शिप किया करें, इबादत किया करें। वो वारिस है और हम उसके हम मिरास। खुदा हमें इस्लाम को से